हाँ, तो उसको बोल दोगे गिलास में पानी रख देगा। मार्केट दे दो। एक बार रुक जाना भाई, बहुत दिन हो गया इस्तेमाल किए हुए। ऑल राइट। नहीं, गिलास में दे दो। विल बिगिन विद, let's first look at the syllabus. How to approach the syllabus, that will be the first dimension of us to do this one. Before I proceed, 2 or 3 things are to be known. First, there is no bifurcation of paper 1 and paper 2. From the second or third class, the moment we will be going bit deep into the modernity to understand the emergence of sociology. We'll also be looking at modernity in a second paper. Can you turn the syllabus? Paper 2. All right. Part A, Unit 2B. Modernization of Indian tradition. Hey? So the debate from the Europe to India, that will begin from there. All right. That would also be making you understand the certain kind of theoretical dimensions, theoretical debates which are immersed in Indian context. When we'll do the unit 5, एक बार सिलेबस घूम लो, थोड़ा सा उसके बाद देखते हैं. All right. In a second paper, we will be dealing with the part B, unit 2, caste system in India. Because the moment you talk about social stratification, one of the type would be the caste. All right. But when you talk about the caste, it will also be making you go to the part C, unit 5, backward caste and Dalit movement. All right. And it will also be making you go to the part C, unit 7D, if I'm not wrong, caste conflict. All right. All will be brought together. Fine. When you see unit 6, work and economic life, no, in a paper 1, unit 6. All right. It will be going together in second paper, part C, unit 3, industrialization and urbanization in India. No bifurcation. सेकेंड पेपर में पार्ट सी देखो और सोशल, हाँ आप देखो 3 नंबर मिला. ऑलराइट. सेम थिंग विल यूनिट 7, फर्स्ट पेपर, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी. ऑलराइट. It will be the same syllabus in a second paper, part C, unit 4. Take. And then you'll have to go deep in terms of understanding that why the debates are there. For example, when you look at the first paper, unit 8, religion and society, you find about one term, secularization. Hey? But when you look at the second paper, part B, unit 6, religion in India, you do not find that word. Part B में देखो बेटा, मिला. But the moment you go to the second paper, politics and society in India, you find that word, secularization. Right? What you people do? You people only read that how Western secularization is different from the Indian secularization. This is the also part of your GS paper 1. Such kind of questions have come right from 2013 in the GS paper 1. All right.
Why don't you think that if the secularization has been a part of religion in Western Europe, why it has not been in India? Why are we talking about secularization in a political dimension? It means to maintain secularism in India, the first onus lies with the state, not with the society, not with the individual. Are you getting me? बोलते हो ना तुम लोग कि there will be no religion as such that would be the state religion, rather the state will be having equidistance with all religion. So the first onus to maintain secularism in India lies with the state. That's why it is there in the polity. All right. System of kinship, unit 9, second paper, part B, unit 5, system of kinship in India. फर्स्ट पेपर में बेटा, हाँ, और सेकेंड पेपर में पार्ट बी, यूनिट 5 है, and the last one would be there in terms of change. All right, social change in modern India, unit 10, paper 1. All right, that is the theme of part C, second paper. Clear? Now let me clear the first point. That's why I said with me there will be no bifurcation of the paper 1 and paper 2. All right. The moment we'll start any unit, we'll try to look that in a broader dimensions of Western Europe, where sociology developed. And then we'll try to look at the same concept, its validication in the Indian society. Some concepts would not be used, some terms will be changed. Why the change has come out? All right. That way the things will be going on. So the moment we talk about sociology paper 1, is it visible? We'll be dealing with 3 parts. Like the second paper, it is part A, comprising unit 1, 2 and 3. Then part B, that is unit 4, and part C will comprise unit 5, 6, 7, 8, 9 and 10. All right. And you need to go to the groove like a layman. छोड़ दो किताब, books, notes, सब कुछ छोड़ो. Develop your own thinking. For example, in unit 1 it is written modernity in Europe, consequent changes and emergence of sociology. All right. What we will be dealing, dear? Write down like this. Modernity. Say what? Right. It means define modernity. All right. Then you say
how to view it. All right. We'll be going more deep into it. Like when say as a historical philosophical concept, it says to move away from the past. All right. Psychological is saying to forget everything with which you are known. All right. Empirical, which could be observed, which could be seen. For example, social, economic, political. All right. That could be observed. Clear? Now, why this is we're talking about? We are saying that when you say modernity, केवल सुनना है, टेंशन नहीं लेना है. If I say in one line that modernity is those cognitive means perception, and structural changes which came to be associated with the urban literate European society. क्या क्या वर्ड यूज किया मैंने? Cognitive, structural, with urban literate European society. Cognitive is perceptive. What is the structure? If I say what is the structure? A structure is an arrangement of parts. For example, this room has a structure, bricks upon bricks. So these all would be with a literate and urban society. It means भाई कुछ प्रॉब्लम है बोर्ड में. Pre modern to modern. All right. Now I ask you what would be the characteristics of pre modern society. So it is rural, thick, thick, hmm, feudal, all right. Right. What would be the opposite of this? Urban, industrial, all right. Capitalist. ठीक है बेटा. Monarchical, democracy, theological, scientific. Theology means which is based on religion. Scientific. All right. Now this is the change. Consequent changes. एक diagram बन गया. What brought the changes? So we'll be talking about there will be some components of modernity. So the first component, can I?
enlightenment. है ना बेटा? Alright? But इसके ऊपर भी जाना है. क्या कर जाएंगे बेटा? Development of natural science. Alright? And then we'll be going for Renaissance. अभी आएंगे. ठीक है? Why did we go there? One line. Renaissance is an intellectual upheaval. Alright? Enlightenment is a critical reaction against authority and tradition. Either that authority would be of a priest, church, either that authority would be of the king. Clear? So, from here, the natural scientists started developing the laws to understand the natural phenomena. Alright? Mind the line. This is the same premise on which sociology developed. With this promise that as the natural scientists are discovering the natural laws to understand the natural phenomena, so should be the responsibility of the sociologist to discover social laws to understand social phenomena scientifically. It means in the emergence of sociology, one of the major component is development of natural science as well. Alright? And once the enlightenment has taken place, the progress which was initiated by Renaissance, the scientific pursuit which was added by development of natural science, got a new direction with enlightenment. Right? अब क्या करना है? बीच में एक दो स्कॉलर को. How do we use the scholars? We use scholars to substantiate our view, not to frame our answer. One of the greatest scholars of enlightenment is Immanuel Kant. Alright? There's one German word, Sapru-Adre. Sapru-Adre means have the courage to think. He says every human being has been provided with the capabilities to think. Think it. Don't go for the blind obedience to the authority and tradition. Right. Now, in this very perspective, what will you be finding about? Certain changes. Clear? But there will be some scholars who will be opposing the process of enlightenment. Status quo bhi honge na? Alright? It means there will also be counter current of enlightenment. तुम्हारे आंसर में दोनों आने चाहिए. ठीक? 4 साल पहले उसने क्या किया? यूपीएससी ने कुछ नहीं किया बेटा. उसने केवल इनलाइटनमेंट में रेनेसांस जोड़ दिया. ठीक है ना? हमने कहां से पढ़ा? हमने पढ़ा बिकॉज द मोमेंट यू से व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्निटी, फर्स्ट कंपोनेंट विल कम आउट एज एनलाइटनमेंट. ऑलराइट? We are neither going through Renaissance, we are not going through the development in natural science. So our understanding is not complete. Alright? And then once you do this one, then Industrial Revolution. This is the second component. Both way, positive, negative. And also the development of certain theoretical dimensions. Clear? Then third one. French Revolution of 1789. Because France also witnessed revolution in 1830 and 1848 as well, which will become the base for the development of Marxian theory. है ना? सोशलिज्म पढ़ते हैं ना? जब भी सोशलिज्म पढ़ते हैं कहते हैं मार्क्स ने बोला, मार्क्स ने बोला. Marx borrowed the term. है? Marx is a very intelligent mason. Mason समझते हो? Mason जो घर बनाता है, राजमिस्त्री. He is a very intelligent mason. He collected bricks from the different yards and erected his building, which what we today call Marxism. Right? Saint Simon आएगा ना, रॉबर्ट ओवेन.
ये सारे लोग आ जाएंगे इसके पहले, ठीक है। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या करेंगे बेटा? वॉयजेस, डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, और एक और जोड़ देंगे, कॉन्टैक्ट विद ईस्ट। ठीक, changes are understood? It means what was the thought process to explain the cultural dynamics in a pre-modern society? They now started proving inadequate because a new kind of changes have emerged out. To explain such kind of changes systematically, scientifically, a new thought was required, which ultimately gave way to the genesis of sociology as a subject in 1838. तो सोशियोलॉजी कहाँ आया बेटा? Who laid the foundation? His foundation was laid down by French scholar Auguste Comte. 1789 French Revolution took place. 1838 in the same French soil sociology emerged. ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक थोड़ा सा डीप जाऊं। Before he coined the term sociology, right? Latin and Greek, he wanted to call it social physics. ठीक, it will make you go to the paper 1 unit 2, positivism and its critic. ठीक है बेटा, नहीं छोड़ना है, हम सिलेबस नहीं देख रहे हैं। The moment we will say that what separates sociology emerged with this promise that as the natural scientists are discovering natural laws to understand the natural phenomena, so should the sociologists should strive to discover the social laws to understand the social phenomena scientifically. All right? Anything that cannot be observed should not be fall within the sociological analysis. And with the work of Auguste Comte, the founder of sociology, positivism and its foundation would be laid down. ठीक है मेरी बात यहाँ से? Unit 1 and 2 would be related with one another. Clear? But there will be some scholars with the emergence of sociology who will be saying no. There is a limitation of the use of methods of natural science. Alright? They will begin with non-positivist stand. Weber, part 4, unit 3. है बेटा? Emile Durkheim. 2. है? He is a positivist, a true successor of Comte. ठीक है, इसका मतलब हो गया, once you have done this one, component changes, emergence of sociology, all right, then what you will be talking about? What sociology studies? If I could quote one scholar, Sorokin, he says anything that happens under the sun is a subject matter of sociology. It's a too broad a statement, all right? So the debate will be emerging out, what sociology should study. So देखो, फर्स्ट यूनिट में स्कोप लिखा होगा, हाँ, कंपैरिजन नहीं करेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे, है ना? रिलेशनशिप देखेंगे ना, व्हाई आई एम यूजिंग द टर्म रिलेशनशिप? बिकॉज वी विल बी टॉकिंग अबाउट बोथ द सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस, right? Because all the subjects, like we are talking about history, anthropology, psychology, political science, economics, philosophy, they all are studying what is happening in society. What sociology studies? Sociology studies what is society per se. क्लियर है ना? फॉर एग्जाम्पल ऐसा अगर लाइन में बोलूं, याद रहेगा, आसान लाइन है, that we share the interest of other scientists, right? But our
perspective, foci, all right, and the locus is different. For example, we the sociologists share the interest of psychologists in individual, but rather than looking individual as a single entity, we look individual as a configuration in society. ठीक है ना? Holistically. It means psychological methods are not wrong in sociology, they are inadequate in sociology. ये लाइन जब बोलोगे तो बेटा दरखाइम शुरू हो जाएगा, सोशल फैक्ट शुरू हो जाएंगे. लिखा है वहां. क्लियर है? पार्ट 4 यूनिट 4 एमाइल दरखाइम है. क्लियर है बेटा? इसका मतलब ये हो गया. सेकेंड लाइन अप. पहले मैंने क्या बोला कि देयर नो बाइफर्केशन बिटवीन यूनिट 1 पेपर 1 एंड पेपर 2. एंड सेकेंड लाइन, there will be no singular study of the units. No unit in sociology is lying in a vacuum. You need to understand the interrelationship between the other units as well. All right? Which will make you interdisciplinary or multidisciplinary, providing a depth to your answer. यूजुअली हम लोग भी बोलते हैं बहुत बार, लिखने की प्रैक्टिस करो, लिखने की प्रैक्टिस करो. Right? क्या लिखें? What to write? Unless until you have a content, adequate content, you will not be able to write. You will be repeating yourself. Your answers will not be having good depth, no analytical skill. All right. So once you have done this one, unit 1, with this diagram kind of one, then in a unit 1 you will be finding about common sense in sociology. देखो C number. है. पेपर 1 यूनिट 1 C. ठीक है. What separates sociology? एक ही लाइन बोल रहा है, अभी छोड़ दो, अभी आज ओरिएंटेशन है ना, ज्यादा टेंशन नहीं दूंगा. What separates sociology from common sense is its scientific nature. नहीं? What is the common sense? Common sense are those held ideas or beliefs which people consider to be true, or they see in such a manner that it seems to be true. जैसे FC ब्लैक एक स्कॉलर है, बहुत दिन के बाद. एक चाइना, एंशिएंट चाइना में एक ट्रेडिशन थी बेटा, आफ्टर सर्टेन एज फुट बाइंडिंग का ट्रेडिशन था. वुमेन्स फुट्स वर बाइंडेड. ऑलराइट. एंड व्हाट वाज द बिलीफ अमंग द चाइनीज सोसाइटी? दैट यू शेप. बहुत दिन से बांधे रहोगे तो बेटा यू शेप ही होगा ना, छोटा होगा. दैट वुड लुक गुड and it will be matter of arousal among the men. FC ब्लैक ने काम किया हुआ कहता है कि if the foot of a woman which has been tied for more than 10, 12, 15 years, so the skin is gone, dead. A scalp should be there. All right? Rather than attraction, the foot would be matter of repulsion. It means whether any idea which is considered to be true is true or not requires scientific spirit, scientific investigation. Alright? तो फिर क्या करेंगे बेटा? कुछ स्टेटमेंट उठाएंगे कॉमन सेंस का, यहां इसी के बगल में लिखेंगे सोशियोलॉजिकल एनालिसिस, whether the held statements common sense are true or not. Alright? इसी में पॉजिटिविज्म को भी ला देना है, इसी में नॉन पॉजिटिविज्म को भी ला देना है. ठीक. और क्या लिखा है यूनिट को गौर से देखिए, क्या लिखा हुआ है? सोशियोलॉजी एज ए साइंस है. अगर मैं 2 लाइन बोलूं, इज सोशियोलॉजी साइंस और सोशियोलॉजी एज ए साइंस, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दिस टू? नो, इफ आई से इज सोशियोलॉजी ए साइंस और सोशियोलॉजी एज ए साइंस,
When I say is sociology a science, it means we are raising concern that sociology may not be science, isn't it? We are not raising that concern in sociology. The moment I said that the positivism was laid down by Auguste Comte, it means the parameters or the foundation on which sociology emerged, its nature was scientific. All right? And all those who have been critic of positivism, they have not denied that sociology is not a science. The difference between positivism and non-positivism is not that sociology is science or not. The difference is, the debate is whether the methods of natural science be applied or not. Getting me? Am I able to make myself clear? अभी कैसा पूछता है बेटा तुमसे क्वेश्चन? अभी क्वेश्चन में पूछता है नोमोथेटिक इडियोग्राफिक, पूछता है ना? अभी खोज रहे हो कहां से आया? वो इसी डिबेट से आया. Nomothetic means search of universal laws, like a science. All right. Idiographic is search of individualizing laws, which may change according to the culture. Getting me? Am I able to make myself clear? So देखो second unit B theoretical orientations लिखा हुआ है लिखा बेटा? तो उसमें सबको ला देंगे. फंक्शनलिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, पॉजिटिविज्म, ठीक है, इंटरप्रेटेशनिस्ट, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, डर्मेटोलॉजी, सब ला देंगे इसमें. एंड यू आर गेटिंग द क्वेश्चंस नाउ ऑन दिस. ठीक. देन पॉजिटिविज्म इज अ क्रिटिक, नॉन पॉजिटिविस्ट, फैक्ट्स एंड वैल्यू. वैल्यूज आर सब्जेक्टिव, फैक्ट्स आर ऑब्जेक्टिव. होगा ना? So the moment positivism began, positivism says that we need to move away from the human values. All right? Human intentions, psychological predisposition has no place in sociological analysis. This is the stand of positivist. All right? Now the non-positivist says that unlike the natural scientists, we are not studying matter. Matter cannot have any emotion, matter cannot have any meaning, matter cannot have any conscience. Humans do have. So we first need to understand the subject matter what we are studying. So values cannot be discarded. Values are to be kept neutral. Clear है? Weber आ जाएगा बेटा. Am I now making myself clear? All right. It means the debate is between society versus individual. Clear? अब दो लाइन बोलता हूं, दोनों को गौर से सुनना. वेबर को कोट कर रहा हूं बेटा. वेबर कहता है सोशियोलॉजी टू बिकम साइंस does not need to be positivistic in orientation. Auguste Comte, Herbert Spencer, Emile Durkheim all finish. All right? अब दूसरा लाइन क्या ऐड करता है बेटा? सुन लेना इसको. वो कहता है even if sociology is not positivistic, objectivity would not prelude us, unquote. All right? Even if you are not going, even if you picked up the meaning, all right, objectivity could still be retained. All right. That's why once again I am saying, debate in sociology is not whether sociology is a science or not. Right since the emergence of sociology, its nature has been scientific. So your answer will change. We are not entertaining any debate of any book which says that sociology is a science on this ground, sociology is not science on this ground. We are not entertaining that one. Because that is not the concern of our syllabus. All right. And to be very honest, it has not been the concern of sociological debate as well, that whether sociology is a science or not. Right. Debate is whether the methods of natural science be applied or not.
So in a very simple line, those who favor the use of methods of natural science are positivists. Those who says no, cultural science requires different methods would be the non-positivists. ठीक है बेटा, यूनिट 2 हो गया, हो गई. And all the scholars who have raised a debate will be going for the certain types of methodology. यूनिट 3 है, ठीक है. कहां से शुरू हो रहा है यूनिट 3? क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव हो रहा है ना. तो एक लाइन अभी आज के लिए बोलूं कि पॉजिटिविस्ट और क्वांटिटेटिव डेटा को मेजर कर सकते हैं, है क्लियर होगा. वो तो क्वांटिफिकेशन कर ही नहीं सकते. जब किसी चीज का क्वांटिफाई कर लोगे तो एक्यूरेट एनालिसिस हो जाएगा तुम्हारा, नहीं हो जाएगा. इसका मतलब अगर ऐसा मैं बोलूं कि द पॉजिटिविस्ट बिलीव इन द यूनिटी ऑफ मेथड्स, whether you are here in India or you are doing hula lala in the jungle of Africa or you are in America, all right, there must be one method of study. Yes. All right. But since the different human have the different cultural dimensions, so meaning may be different. When we say Shivlinga, yes, one who does not believe in a Shivlinga, it is a stone, piece of a stone, no reference, isn't it? So meaning may vary from one to another. Same phenomena may have a different meaning in a different cultures. Clear है मेरी बात? Same phenomena may have a different meaning in a different cultures in the same society. What Hindus thinks, not necessarily Muslims will think in the same manner. Not the Christians will think in the same manner. Take your time. अभी हम जीएस के पार्ट में हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का. हाँ, तो सर ये जो कल्चर है, सोसाइटी है, वो सारे ज्योग्राफी में बेस रहा है ना. तो ज्योग्राफिकल भी हो सकता है, बट ज्योग्राफी वुड आल्सो बी पार्ट ऑफ द कल्चर. ज्योग्राफी कैन अफेक्ट योर वेज ऑफ लाइफ, है ना. अब तुम ग्लेशियर वाला जगह पे हो तो उनका जो कल्चरल डायमेंशन निकलेगा वो डिफरेंट होगा प्लेन से, होगा ना. बट द कल्चर वुड बी डिफरेंट फ्रॉम वन टू अनदर, होगा ना. So culture of one group may be different from another. So if the same phenomena may have a different meaning in a different culture. Clear हुआ अभी? yes sir. अब दूसरा लाइन को सुनना. Same phenomena may have a different meaning in a different cultures in the same society. Same phenomena may have a different meaning at the two time span of an individual. Today what I consider right, tomorrow I may not. Yes. All right. So how could, like the natural science, there would be unity of methods? फिर रिपीट कर रहा हूं. Debate in sociology is not whether sociology is a science or not. Debate is whether the methods of natural science be applied or not. Those who said yes are the positivist, quantitative. Those who say no, non-positivist, qualitative. Clear? Yes sir. अब उसके आगे सब लिखा हुआ, रिलायबिलिटी, सैंपल, हाइपोथेसिस, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, Yes. है ना. ठीक. सिंपल रूल क्या है? द यूनिट बिगिंस विद क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव. So why we are not using this quantitative qualitative in all the methods? Why you are writing rotten there? Participant observation which will be done by the non-positivist, will be done by the positivist. So their perspective of observation will vary or not. The UPSC requires that answer in you, if you really want to face the marks. Clear? And heart and soul of sociology, can I? Is
ठीक है, अब आई हैड रेज द पॉजिटिविस्ट नॉन पॉजिटिविस्ट, सही ना? कार्ल मार्क्स is a critic to positivism. ठीक, Durkheim is a positivist. Weber is a non-positivist. All right. Last one is G.H. Mead. G.H. Mead is a non-positivist. Symbolic impressionism, self and society लिखा होगा, identity मिला 6 नंबर में, सबसे लास्ट वाला में, यूनिट 4 वाले में G.H. मीड मिला, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। क्लियर है बेटा? अभी तुमसे क्वेश्चन आता है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है। इट्स अ वेरी पेनफुल यू पीपल राइट that the term symbolic impressionism is related to the works of G.H. Mead. He has not coined the term. That term was coined by his resident Bloomer, Herbert Bloomer. And your very first line has made the examiner know that you don't know sociology. है वो नॉन पॉजिटिविस्ट है, होगा ना? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, एक एक स्कॉलर का 2-2 लाइन रट ले रहे हैं। ऑलराइट, why we are writing only piece of information in our answers? Are these 6 scholars not sufficient enough to write in 100 words, 150 words? आंसर ही लिखना है ना, क्लियर है? The more you read, the more comfortable you become in thinkers. All right, you will be approaching 300. And if you are not good in thinkers, all right, sociology would be a cause of pain. ठीक है ना? तो कैसे पढ़ना है बेटा? कुछ नहीं करना, ऐसा करना है, ये लिखना है यहाँ पे पहले थीम, फिर लिखना है कंसेप्ट्स, फिर लिखना है मेथड्स, थीम विच इज देयर इन सिलेबस। हर थिंकर के आगे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ये सब थीम हो गए। ठीक, हर थीम का कुछ कंसेप्ट्स होगा। ठीक, और हर स्कॉलर का अपना मेथोडोलॉजी होगा। लैंग्वेज इज योर्स, लिखना तुमको है ना, समझ गए तो लिख लेंगे, क्लियर है? बट you need to understand those socio-historical background which gave birth to the thinkers. मैं अगर कार्ल मार्क्स का एक लाइन कोट करूं तो कहता कि philosophers are not the wild plants will grow anywhere. Philosophers will always grow in the society. Every philosopher, every thinker is a product of his own time. So the socio-historical background has to be understood. Clear? With whom they will borrow something, with whom they will disagree with. You will be getting the base of their understanding. Take? And first reading of the thinkers should be like a novel. कहानी नहीं पढ़ते हो ना, तो सोच लो कि तुम्हारे पास 6 नॉवेल हैं, ये 6 नॉवेल की तरह पढ़ लिए बिना दिमाग लगाए। 5 लाइन छूट गया, 2 पेज छूट गया, एक बार पढ़ लिए। अब नाउ विल बी कमिंग टू द सिलेबस। अब सिलेबस में देखेंगे, अगर मार्क्स में लिखा हुआ मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, so second time we will be reading modes of production. In the same manner, what are the concepts we will jot down. All right, what was the method he has used, we'll jot down. All right, and then we will be looking at the previous year questions. All right, first reading, let it be as if you are not in sociology. You wanted to know what Marx has said, what Durkheim has said, what Weber has said, Parsons has said, Merton has said, and G.H. Mead has said.
जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी पढ़ते हो ना, वैसे ही पढ़ लो, उसके बाद फोकस्ड हो जाओ। क्लियर? योर कंफर्टेबिलिटी इन यूनिट 4 will make you more confident in unit 5, 6, 7, 8, 9, 10. For example, कैसे? यूनिट 5 देखो क्या लिखा हुआ है, थियरीज ऑफ सर्टिफिकेशन लिखा है बेटा। हाँ, क्या उसमें कौन कौन देखो लिखा हो? स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट, पार्सन्स, ठीक, मार्क्सिस्ट लिखा हुआ उसमें, वेबरियन लिखा हुआ है। अब तुमको पढ़ने की जरूरत है क्या? ऊपर तो पढ़ ही चुके हो, वेबर और मार्क्स पढ़ चुके हो ना? है यूनिट 6 में भी ऐसा है, यूनिट 7 में भी वैसा ही लिखा हुआ, थियरीज ऑफ पावर, थियरीज ऑफ रिलीजन। यूनिट 10 में जाओ, थियरीज ऑफ चेंज लिखा हुआ है ना? अब मेरी बात को सुनो, थर्ड लाइन को ठीक से सुनो। आवर प्राइम फोकस वुड बी दिस 6 thinkers, alright, which will be using in a first paper and second paper whenever it is required. Will be using some other scholars whenever the demand of the syllabus arise. Getting me? Alright. And by the time you have applied the thinkers, every unit requires the conceptual clarity. अभी मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, क्या बोलो? अप्रोच इट। हाँ बोलो बोलो। स्ट्रेटा, सबसे पहले ना बेटा सिलेबस को समझना जरूरी है। सिलेबस कहाँ से शुरू हुआ देखो तो, इनइक्वालिटी, एक्सक्लूजन, ये सब शुरू हुआ है। क्यों क्यों यहीं से शुरू हुआ सिलेबस सोशल सर्टिफिकेशन का? तो हम, हाँ बोलो। हाँ हाँ, तो अब हमारा कंसेप्चुअल डायमेंशन कैसा हो, कितना वर्ड में लिखना हमको, उतना स्पेस भी दिया हुआ है। राइट, वी नीड टू बी माइजर। माइजर समझते हो ना? माइजर का मतलब कंजूस। वी नीड टू बी माइजर इन टर्म्स ऑफ आवर वर्ड्स एंड इट्स यूज। है, मैं एक लाइन में ऐसा बोलूं कि स्ट्रैटिफिकेशन इज स्ट्रक्चर्ड institutionalized inequality. क्लियर? स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स। अगर इंडिया में देखो तो कौन कौन होगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अनटचेबल। स्ट्रक्चर है। क्लास सिस्टम को देखो, वेस्टर्न सोसाइटी को, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अंडर क्लास, है स्ट्रक्चर्ड। दूसरा वर्ड मैंने क्या किया? इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। ठीक, it means it has now come out with a certain pattern. Clear? Containing inequality created by the society. गॉड ने नहीं बनाया है। हम लोग कास्ट सिस्टम को भी प्रोवाइड द रिलीजियस कॉनोटेशन एंड वी कोट लॉर्ड कृष्णा, और चतुर्वर्णा मम सृष्टा, मैं नहीं बनाया 4 वर्णों को, ऐसा हम लोग बोल देते हैं। सो इज अ रिलीजियस थियरी। क्लियर है ना? अब the 2 examples of social stratification in modern times is class and caste. ठीक है, फिर बोल रहा हूं, स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनइक्वालिटी। आप सिलेबस को देखो तुम, लुक एट द सिलेबस ऑफ योर्स। है कंसेप्ट है बेटा, इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, एक्सक्लूजन, ये सब होंगे ना? है
Why they are written, it is fine now. तो अब जितने भी चीजें हैं हायरार्की से लेके एक्सक्लूजन तक, है ना, सब केवल कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहते हैं. ठीक. अब उसमें दिमाग क्या लगाना है बेटा? खुद का, सिलेबस का नहीं. द मोमेंट यू से एनी सोसाइटी इज स्ट्रक्चरली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड showing inequality, it means there may be certain societies where the inequality has not been institutionalized. होगा ना? तो तुमको क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय अनस्ट्रेटिफाइड सोसाइटी? बच्चा क्या लिखता है टेस्ट सीरीज में? अ सोसाइटी विच इज नॉट स्ट्रेटिफाइड इज अनस्ट्रेटिफाइड. तो उसको नंबर पे तो वैसे ही ना आएगा बेटा, आएगा ना. इनइक्वालिटी, द सोसाइटी वेयर इनइक्वालिटी हैज नॉट बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड would be unstratified society. ठीक है ना? अब क्या होगा भाई? एक ऑर्डर बना दिए. Why have we stratified the people? अब मैं एक लाइन बोलता हूं, उसको ठीक से सुनना है. The society which stratifies its members one above the another also provide the avenues to improve their situation. वो मोबिलिटी लिखा होगा स्ट्रेटिफिकेशन के साथ है, उसी में लिखा होगा ओपन वर्सेस क्लोज. ठीक है. क्लास वर्सेस कास्ट. ठीक है ना? वैसे ही करके तुमको हर चीज का यूनिट 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब का केवल कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए. ठीक है. एक्यूरेट सोशियोलॉजिकल वर्ड यूज करना है. एक्यूरेट, है ना? खासकर किनशिप में मामा, चाचा, ताऊ, चाची बेकार है सब, है ना? क्लियर है मेरी बात बेटा? मोबिलिटी इज मूवमेंट, literal meaning. It means the parameters on the basis of which the members of a group has been stratified one above the another. All right? There is a movement of individual, family and group on the same parameters. तो किस पैरामीटर पे स्ट्रेटिफिकेशन हो सकता है? पावर, वेल्थ, स्टीम, ऑनर, ये सब होगा ना. These are the same parameters on which mobility will take place. So mobility could be upward, mobility could be downward, so vertical. Mobility could also be horizontal. It means no change in the position, but there is a mobility. All right. Inter and intra. When I am compared with my father, all right. When I am compared on a 2-time scale of my life. For example, I is a student and I is a teacher. Intra हो गया वो. All right. My father a businessman, I a teacher. क्लियर है ना? उसी को डाउनवर्ड उसमें देख लेना है. तो टाइप्स ऑफ मोबिलिटी लिखा हुआ है, सोर्सेज लिखे हुए हैं. ठीक. सबसे पहले तो बेटा ना सिलेबस को समझना जरूरी है. सिलेबस में कुछ भी एब्रप्टली नहीं लिखा हुआ है. ठीक है ना? अब ये सारा चीज जब पढ़ लेंगे, क्लियर, इसी को लेके चले जाएंगे सेकंड पेपर में. सेकंड पेपर खोलो. क्या क्या लिखा हुआ बेटा? हाँ हाँ, ठीक है ना? क्या क्या लिखा? इंडोलॉजी, जीएस घोरिए, स्ट्रक्चरल मार्क्स फंक्शनिज्म, एम एन श्रीनिवास, मार्क्सिस्ट, AR देसाई, लिखा है ना बेटा? क्लियर? अब 2 लाइन को सुनो. सेकेंड पेपर इज अबाउट इंडियन सोसाइटी. Most of the contents which will be going through in a second paper will be used in a GS paper 1, paper 2 and paper 3. Clear? Most of your understanding of social dynamics will be one of the essay. Clear यहाँ तक? अब wherever there is society, there is a sociology. All right? It means sociology, the discipline, should not be confined to certain soil and certain time.
हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई? सोशियोलॉजी इमर्ज इन 1838 इन वेस्टर्न यूरोप, यही बोल रहे हैं ना? क्लियर है? नहीं भाई, इसको कहीं टाइम स्केल से किसी सॉइल से नहीं करना है, ठीक है मेरी बात? एंड फर्स्ट सोशियोलॉजी इमर्ज इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रेजीम, कॉलोनियल इंडिया में सोशियोलॉजी इमर्ज किया। पहला डिपार्टमेंट कब खुला? बॉम्बे में 1919 1920, ठीक है ना? आज कौन सा साल है? मतलब 106 years, 7 years, clear? 107 years में we have not been able to develop our own theoretical model and concepts. Are we still blindly following what Western society is teaching us? Getting me? तो जितना भी यूनिट पढ़ना है, सेकंड पेपर में 2 चीज याद रखना है। जितना भी यूनिट पढ़ना है, पहला चीज उसमें सबसे पहले क्या याद रखना है? प्री ब्रिटिश, ब्रिटिश, ठीक? Even if you are studying marriage, even if you are studying kinship, even if you are studying village, ठीक है ना? क्या इंडियन सोसाइटी के बारे में कॉलोनियल पीरियड में ही सोचना शुरू किए? सोसाइटी के बारे में हम लोग प्री ब्रिटिश टाइम में कुछ नहीं लिखे ना? तो जो रिलीजियस सैक्रामेंट सेक्ट्स हैं, टेक्स्ट हैं, वो भी सोर्स हैं, इंडोलॉजी है वो, ठीक? बुक भी हो गया, जो लिखा हुआ है बोध पुराण, रामायण, ठीक है? 60s आता है, कुछ स्कॉलर खड़े होते हैं, कहते नहीं भाई, we now need to focus on the field view, for which we need to go to the society, we need to study, we need to collect the data, and we need to interpret it. What was written thousands of years back, society has changed. All right, structural functionalism हो गया, ठीक है ना? तो पहले ये याद रखना है, और दूसरा 6 थियरी याद रखनी है। मैं लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे, इसको आप कहीं लिख लो। इंडोलॉजी, स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, मार्क्सिज्म, मॉडर्निस्टिक, number 6 subaltern, and number 7 feminism। बोलो, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म है ना, मॉडर्निस्टिक, हाँ, और सबअल्टर्न। हाँ, सबअल्टर्न मीन्स लुकिंग हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। रंजीत गुहा पॉपुलराइज द टर्म, ठीक है? लेकिन रंजीत गुहा को जानने के लिए ग्रामसी को जानना जरूरी है। नियो मार्क्सिस्ट है बेटा ग्रामसी, है ना, जहां से सिविल सोसाइटी पढ़ते हैं आज का हम लोग, और फेमिनिज्म, ठीक? जितना भी यूनिट पढ़ो, यूनिट 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, 10 मिनट का कोशिश जरूर करना कि हाउ द फेमिनिस्ट हैव रिएक्टेड टू सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, हाउ दे हैव व्यूड सिस्टम ऑफ किनशिप, what their opinion is on the work and economic life,
Alright? How they have perceived development? है तो तुमको कुछ वर्ड मिलेगा बेटा, वैड, वीड, है ना, वुमेन एंड डेवलपमेंट, वुमेन इन डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट होगा ना। ये सब सारे इतना थियोरेटिकल डायमेंशंस को तुमको जानना है। तुम्हारे सिलेबस में क्या लिखा हो बेटा, 1, 2 और 3। ठीक है, और थोड़ा बहुत डेटा आपको मिलेगा, जैसे कि पेपर 2 पार्ट बी कास्ट सिस्टम पे आओ, है देखो 4 नाम लिखा हुआ है, जीएस गुरे इज इंडोलॉजिस्ट, एमएन श्रीनिवास इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, हैं लुई डूमो इज स्ट्रक्चरलिस्ट, लुई आंद्रे बेते, हाँ बेते, ठीक है, इज इंडियन स्कॉलर स्टिल लाइव। 3 है, लुई डूमो फ्रेंच है, नहीं ऑल 3 गोन, हाँ ठीक है, क्लियर बेटा। अब लुई डूमो इंट्रोड्यूस, एक स्कॉलर है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, ठीक है, इज अ फ्रेंच स्कॉलर, उसके मॉडल को स्ट्रक्चरलिज्म को उसने कास्ट सिस्टम पे लगा दिया लुई डूमो ने, ठीक है, उसी का मॉडल है अलायंस थियरी, है। अब तुम जाओ पार्ट बी यूनिट 5, किनशिप में लिखा हुआ कहीं देखो तो, टाइप्स ऑफ किनशिप है, तो तुम उसमें तुमसे क्वेश्चन कैसा पूछता है, नॉर्दर्न सदर्न किनशिप, कोई चेंज है नहीं। कैन एन इंडिविजुअल मैरी his mother's brother's daughter, father's sister daughter and his elder sister daughter in North India? He can marry all these 3 in South India, है। तो भाई जब किनशिप पढ़ रहे थे हम लोग सेकेंड पेपर में, तो हमने क्यों नहीं ये थियरी लगाई, जब नॉर्थ और साउथ का हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हमने डिसेंट और अलायंस के मॉडल को यूज किया, और फिर हम कहते हैं कि हमको नंबर नहीं आता है, क्यों नहीं उसमें हमने कल्चरल डायमेंशन यूज किया, क्या ना बेटा। तो इसलिए फिर बोल रहा हूं, ये तुमको यूज करना है तुम्हारे आंसर्स में, ये 7 थियोरेटिकल डायमेंशंस आपको करना है, और फेमिनिज्म आपको हर जगह करना है, लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, है। तो अभी क्या करना शुरू किया है, वो कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स आर पेट्रियार्कल, है। क्वेश्चन है बेटा यूपीएससी का, मेरा नहीं है, यूपीएससी ने एक और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इज अ पेट्रियार्कल इन नेचर, कमेंट। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोलूंगा तो मार ही हो जाएगा। यूपीएससी पूछ रहा है बेटा, पिछले के पिछले साल यूपीएससी ने रिलीजन पे पूछा है क्वेश्चन फेमिनिज्म का, है। फिर उसने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में कहा कि द अर्ली थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस वर कंजर्वेटिव, वो फेमिनिस्ट के क्रिटिक हैं, फेमिनिज्म का क्रिटिसिज्म है ये, इतना तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब भी कोई यूनिट उठाओ पढ़ने के लिए ना, तो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेस ऑफ इट, so that any offbeat question which you consider sometimes to be out of the syllabus, you would be able to handle it, ठीक है ना।
उसे दो फायदा होगा बेटा, एक तो कॉन्फिडेंस होगा, नॉलेज स्ट्रक्चर्ड होगा, और जब तुम लिख रहे हो, मान लो क्लास में भी लिख रहे हो क्लास नोट्स, तो तुमको पता होगा कि हम लिख क्या रहे हैं। बहुत बार होता क्या है, क्लास नोट्स में डिक्टेशन शुरू हुई, आप लिख दिए 3 पेज है, तुमको 3 पेज लिखने के बाद भी पता नहीं चला कि हम लिखे क्या है यार, तो तुम घर जाकर उसको क्या रिवीजन करोगे, तुमको तो समझ में नहीं आया ना। तो unless and until you have understood the concept, right, and even if you have not understood the concept twice, thrice, take the liberty to ask the teacher in a polite manner कि सर एक बार और बताइए सर। Your understanding is your comfortability. मुझे तो क्लियर है, मुझे तो निर्वाण मिल चुका 93 में ही, 94 में ही यूपीएससी से, राइट। अभी आपको करना है, मैं अंदर का क्लैरिटी लेके जाऊंगा। अभी मैं जो सोशियोलॉजी पढ़ता हूं उसकी जरूरत नहीं सिलेबस को, क्लियर है ना। लेकिन फिर भी हम लोग आपसे ज्यादा पढ़ते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि टीचर पढ़ के नहीं आता है, बिकॉज द डे टीचर स्टार्ट्स और स्टॉप स्टडिंग ही इज एकेडमिकली डेड, राइट। और अब तो ज्यादा पढ़ना पड़ता है बेटा, बोलो क्यों? इतना नोट्स और खराब खराब किताब मार्केट में आ गया जो तुम लोग पढ़ते हो, है इतना खराब खराब क्वेश्चन पूछते हो कि कभी कभी हमको भी देखना पड़ता है। एआई आ गया, चैट जीपीटी आ गया, एक्स आ गया, है वो मैं नहीं देखता, मैं बोलता माफ कर दो मुझे, है बेसिक बुक पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और मैं बोलता हूं कि आपको खरीदने की जरूरत नहीं, एक बेसिक बुक खरीद लीजिए, एनसीईआरटी ले लीजिए, और इस यूनिट में जहां जहां मुझे लगा कि इंडोलॉजी पे एक नोट्स आपको चाहिए है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे वो पहुंच जाएगा। जो भी स्टैटिक पार्ट हो गया है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो नहीं चेंज हो रहा है ना। न्यू इंटरप्रिटेशंस विल हैव टू गो थ्रू इट, होगा ना। ये डायमेंशन को जानना जरूरी है। और जैसे आजकल एक नया वर्ड हम देखते हैं, ओक, पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, WAKE, WOKE, है ना बेटा। ये बेटा रेशियल प्रेजुडिस को लेके 18th सेंचुरी से चल रहा है। ओक वर्ड को मॉडर्न टाइम्स में एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, है। ये सब डायमेंशंस को थोड़ा सा आप पढ़ते हुए जब समझेंगे तो मैरिज में समझेंगे, है ना। तो तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द न्यू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ मैरिज दैट हैव इमर्ज्ड इन वेस्ट एंड ईस्ट, ठीक है ना। डिवोर्स हो रहे हैं ना, डिवोर्स के बाद रीमैरिज भी हो रहे हैं ना। तो वो दोनों सिबलिंग हुआ, होगा ना। So there is a joke in internet, a wife is giving a call to her husband in office and saying, rush back to home, your, mind the line, your and mine children are beating our children, होगा ना। तो फैमिली का ऐसा भी टाइप तो निकल रहा है ना बेटा, निकल रहा है ना। ये सब तुमको जानना होगा, तो जितना भी कंटेम्प्रेरी टाइम से वो तुमको जानना है। तुमसे अब वो मैरिज फैमिली किन्सी पे ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, कंटेम्प्रेरी चेंज पूछ रहे हैं। लेकिन जब वो कंटेम्प्रेरी चेंज बोलते हैं तो चेंज ऑलवेज हैज अ रेफरेंस, बिना रेफरेंस के चेंज को नहीं समझा जा सकता है। ये ओवरऑल तरीका होगा सोशियोलॉजी को चलने का, और इसी ढंग से सोशियोलॉजी चलेगी। और कुछ पूछना है तो मुझे बोलो। अभी तो कुछ बच्चा नहीं आया, तो उसमें वही परेशानी है कि सर क्या लिख रहे हैं, हमको ये तो पता होना चाहिए। ये मैं तुमसे भी आज बात कर रहा था, अब ये है, मैं भी ऐसा ही था, मैं भी मुझे पढ़ाने वाले में किंग्स कॉलेज के प्रोफेसर भी रहे हैं, तो मैं तो बोल देता कि सर मुझे पढ़ने दे दो, फिर मैं पढ़ूंगा। भाई मुझे वो समझ भी नहीं आ रहा कि स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म क्या है, तो मैं लिखूं क्या उसके बारे में। आजकल एक नया तरीका आ गया मार्केट में, रोज 100 पेज लिखो, यहां से फट जाना चाहिए, यहां से अरे क्या लिखे, 100 पेज लिखे हैं।
आई लव यू आई लव यू आई लव यू ये सब लिखना है क्या? अरे कुछ तो बताओ क्या लिखें. सो डेवलप द कंटेंट. 3 चीजें सबसे पहले करना चाहिए बेटा. ठीक है. कलेक्ट द फैक्ट्स, refine the facts and present the facts. Refinement will provide you how the facts are to be used and where they are to be used. कहीं से भी करो, but verify the fact. है open to be criticized. सच है, तुम लोग टीचर्स को क्रिटिसाइज करते हो या नहीं करते हो? बाहर निकल के करते हो ना? करते हो ना? तो फिर तुमको करूंगा मैं क्लास में तो क्या परेशानी है? मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि तुम मार्केट में कोई भी आंसर शीट मुझे ला के दे दो, मैं बता दूंगा कौन टीचर है वो. और अब तो ज्यादा हो गया. हम लोग के समय 1 ही 2 बुक होता था. वो भी बुक हम लोग जाके खरीदते थे वहां से दरियागंज से. मेन करेंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट, रेमंड आरा, है ना. तो फिर उसमें मेलेनोवस्की और ब्राउन नहीं मिलते थे. पहले 2 सब्जेक्ट, वो दोनों स्कॉलर भी थे उसमें. ये तो जीएच मीड बाद में ऐड किया है. मैं खुद बोलता हूं कि जीएच मीड को ऐड क्यों किया, क्या सोच के किया, उसको भी नहीं मालूम है. GH Mead has been used 10% in your syllabus. 90% of his ideas are untouched. नहीं पूछा गया आपसे. वो तो सोशल साइकोलॉजिस्ट है. ही इज नॉट अ सोशियोलॉजिस्ट. सिगमंड फ्रॉइड के अगेंस्ट में कुछ खड़े होंगे ये लोग, है ना. तो ये सब चीजों को थोड़ा सा बेस, हर चीज का बेस जानो, है ना. जैसे हम लोग हिंदी में बहुत बार यूज करते हैं, मेरा रिश्तेदार है, बोलते हैं ना. Yes. फिर बहुत बार बोलते हैं मेरे नातेदार है. दोनों एक ही वर्ड है. नातेदार इज अ ब्लड रिलेटिव, रिश्तेदार इज अ फाइनल रिलेशंस बाय मैरिज. इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट तुमको मेंस के समय में होना चाहिए कि मैं क्या वर्ड उठा रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, ये मुझे जानना है. मैं क्लियर हूं. तुम्हारा थॉट क्लियर होगा तो मेरे आंसर्स क्लियर होंगे, एकदम टू द पॉइंट होंगे. आपके थॉट पे एम्बिग्यूटी है, देयर इज एम्बिग्यूटी प्रिवेल्स एट द लेवल ऑफ योर थॉट, यू वुड नॉट बी एबल टू डू जस्टिस विद योर आंसर्स, है ना. long ago there lived a king was so beautiful, smart, he has a big orchard field of mangoes, orange. वो जमाना गया ना. 600 वर्ड में हम लोग के समय में आता था लिखने के लिए. अगर 50 शब्द इधर उधर हो गया तो पकड़ लेते थे हम लोग. और अब वो छोटे से स्पेस में 50 वर्ड अगर चला गया तो थोड़ा आंसर इनकम्प्लीट है मेरे भाई, है. और तुम मानो या ना मानो, जब नहीं होता यूपीएससी तो इधर दर्द होता है बहुत, है. वो जीवन भर का दर्द है. यूपीएससी नहीं होता है ना भाई. Most of the people have made their career if they have not been qualified in civils, है. But deep down their brain एक पिंच रह जाता है कि मेरा नहीं हुआ. So do some hard work, do some smart work, all right, and be prepared before you go to the exam. कहीं से भी कोई क्वेश्चन मिले, कहीं भी कुछ उठा लेते हैं, कुछ भी क्वेश्चन बना लेते हैं. अगर सोशियोलॉजी में कोई क्वेश्चन आए तो सोशियोलॉजी का क्वेश्चन होगा, है. जैसे क्वेश्चन आपको सीधा एक लाइन में पूछा, सेरेंडिपिटी 2010 में पूछा. सेरेंडिपिटी, द सेरेंडिपिटी का मतलब होता है बाय चांस डिस्कवरी. अब उसमें बच्चा क्या लिख रहा है कि मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक इन्वेंशंस हैव बीन सेरेंडिपिटस. तो पहले तो तुम ये दिमाग लगाओ कि सेरेंडिपिटी तुमसे पूछा कहाँ है. सोशियोलॉजी में पूछा ना. तो इसका मतलब है कि सोशियोलॉजी में कोई ऐसा आदमी, कोई स्कॉलर या कहीं यूनिट रहा होगा जहां सेरेंडिपिटी का वर्ड यूज हुआ होगा. मटन ने यूज किया. देखो मटन यूनिट 4 देखो, लिखा होगा मैनिफेस्ट लेटेंट फंक्शन, है ना बेटा. अब यहां तक तो कोई लिख ही नहीं रहा, फिर तुमको नंबर क्यों देगा? नहीं देगा ना. ये इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट तुमको चाहिए बेटा.
यूनिट 4 को कम से कम 1 महीना से ज्यादा लगता है बेटा। 4 साढ़े 4 महीने के कोर्स में सबसे ज्यादा टाइम इन थिंकर को लगता है, और थिंकर को खाली पास टाइम की तरह नहीं पढ़ना है, डीप जाके पढ़ना है। और कुछ पूछना तो बोलो मुझे। ये तरीका होगा, इस ढंग से सिलेबस चलेगी आपकी। ठीक है, ये जो कॉपी लेके घूमते हो 1.5 कॉपी होगा, 1.5 कॉपी से ज्यादा का नोट्स नहीं होगा। शायद मैं ही एक टीचर हूँ, जो मुझे जानने वाले टीचर से उनसे पूछना, वो बताएंगे कि मैं ही एक टीचर हूँ जो कहता हूँ कि सोशियोलॉजी विल नॉट बी कॉज ऑफ रिजेक्शन एंड आई विल नॉट बी कॉज ऑफ ए रिजेक्शन। अगर सोशियोलॉजी में तुमको नंबर नहीं आया है तो जी भर के गाली दूंगा तुमको मैं, और मैं याद दिला दूंगा कि तुमने क्या क्या गलती की है। मैं याद दिला दूंगा किस दिन क्या बोले थे, कहाँ पे तेरा नोट्स पड़ा हुआ है। आपका काम है, मेरा काम है 2.5 घंटा बोलना, आपके क्वेरीज को फुलफिल कर देना। 2.5 घंटे का क्लास के बाद तुम्हारा समय शुरू होता है। यू विल हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न दैट वन, यू कैन नॉट गो बाय इट। ठीक है, एनीथिंग एल्स? फाइन, ऑल द बेस्ट। Sir, just question mobility, sir. हाँ, Can it give birth to the reservation? रिजर्वेशन कुड बी वन ऑफ द सोर्स ऑफ मोबिलिटी, So. पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है ना। एडुकेशन कुड बी अ सोर्स ऑफ मोबिलिटी। Means mobility is the broader terms. मोबिलिटी सिंपल एक टर्म मूवमेंट, लेकिन हम लोग यूज कर रहे हैं सोशल मोबिलिटी। सो वी नीड टू लुक इन द फ्रॉम द सोशल पैरामीटर। So the parameters on which social stratification has emerged are the same parameters to measure mobility, है ना। Education can free you from the bondage of birth. Inequality prevalent at birth, caste system है, because in a caste system man will always be frozen in the category in which he is born. ठीक है, सब लोग कहे, पूरे ब्रिटिश जितने भी ब्रिटिश स्कॉलर्स थे सबने कहा कास्ट सिस्टम इज अ क्लोज सिस्टम है। सच में था क्या ऐसा? क्या अनुलोम प्रतिलोम नहीं हो रहा था? हाइपोहाइपरगेमी नहीं हो रही थी? है एम एन श्रीनिवास कम्स आउट, ही प्रपोज अ कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड संस्कृताइजेशन, है। तो ही डीमिस्टिफाइज द मिथ दैट कास्ट इज अ क्लोज सिस्टम। सो कोई भी सिस्टम ना तो प्योरली क्लोज है ना ओपन है। अभी थोड़ा और डीप जाऊंगा तो इसी आंसर में हम लोग वेबर का आइडियल टाइप यूज कर लेंगे। यू नाउ नीड टू लेट द एग्जामिनर नो दैट यू अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी। हम लोग के समय में सोशियोलॉजी पहले कैसे लेते थे? ठीक है, सोशियोलॉजी को सॉफ्ट साइंस बोला जाता था। इट वॉज मोर प्रिफर्ड बाय द गर्ल्स। ठीक है, तो मेरे डिपार्टमेंट में हम लोग बोलते थे कि अब इट इज नॉट अ सॉफ्ट साइंस बिकॉज द पीपल लाइक अस हैव कम। हम लोग किसी भी कोना से सॉफ्ट नहीं देखते हैं। और पहले बच्चा क्या कहता था, दे यूज्ड टू से सर सिलेबस इज वेरी शॉर्ट। आई ऑलवेज यूज्ड टू से नो, सिलेबस इज नॉट शॉर्ट, सिलेबस वुड बी ब्रोकन, ए बी सी डी, उसमें और डायमेंशंस आते जाएंगे। हाँ, कंपैरेटिवली इट विल टेक लेस टाइम टू प्रिपेयर, notes are available, you do not have to search here and there, writing practice should be there, collect the data, make a synopsis समझते हो ना, and write it down। हमेशा ना छोटा गोल रखना चाहिए। यूपीएससी में शायद अजीब लग रहा होगा, छोटा गोल का मतलब है कि आज मैं 2 ही आंसर लिखूंगा। आप क्या बनाते, आज मैं 10 आंसर लिखूंगा, नहीं हो पाता है बेटा। So keep the short goals, increase it. That gives you the confidence कि हाँ 2 करके मैं लिखते लिखते 10 दिन में 20 आंसर लिख दिया। ठीक है ना। अपने ही आंसर को अगर चौथा दिन पढ़ो, ठीक है, तो तुमको पता चल जाएगा क्या गलती की है। एक गलती और क्या करता है स्टूडेंट, ही रसेस टू द टीचर
by writing everything. Right? Why don't you read it? Once you have written it, you read it. All right? And read from the source. लिख के रख दिए, अब सोर्स को पढ़ लो. अब देखो तो तुम उस सोर्स में अगर तुमको 10 पॉइंट मिला था सिनॉप्सिस में, तुमने अपने आंसर में 4 पॉइंट लिखा, तो इसका मतलब था कि उस सिनॉप्सिस से 6 पॉइंट छूट गए. कंसोलिडेटेड एंड देन गो टू द टीचर. क्योंकि टीचर भी क्या करेगा, 6 पॉइंट बता देगा, तो 6 पॉइंट तो तुम भी सिनॉप्सिस में लिखे थे ना भाई, लिखा था ना. अब इंट्रोडक्शन, मेन हार्ट, कंक्लूजन. अरे 100 वर्ड 150 वर्ड में आंसर लिखना, कौन सा मेन हार्ट, कौन सा कंक्लूजन? डायरेक्टली हिट द बुल्स आई. व्हाट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन? एक लाइन. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज स्ट्रक्चर्ड इन सोशलाइज इनइक्वालिटी. The two types of these are the class and caste. Finish. हर सिलेबस, हर यूनिट की जहां से शुरुआत हुई है, from where every unit has begun, try to understand it. That's why I say that when you say social stratification, it starts with inequality. होगा ना? अब inequality से शुरू हुआ तो इसका मतलब equality भी होगा, तो कुछ क्वेश्चन equality पे भी होंगे ना? एक्सक्लूजन है ना? क्वेश्चन होगा. अब कैसा क्वेश्चन? क्वेश्चन तुमसे अच्छा पूछता है, समझने का है. Some people are socially excluded, all right, and some kept themselves excluded socially. Elucidate. ये क्वेश्चन है सिविल्स का. ठीक है, सबको पता है. अगर मैं एग्जांपल दूं, द हिंदू वर्ना सिस्टम excluded, socially excluded the untouchables, scheduled caste. All right. Today the scheduled caste does not consider themselves as a part of Hinduism. एक तरह आंसर मिल गया है. ये कंसेप्ट का खेल है, ये कंसेप्ट का, ये रटने वाला नहीं है. तो सोशियोलॉजी कंसेप्चुअल है, सिस्टमेटिक है. नहीं, आप पढ़ रहे हैं ना, सोशल एक्सक्लूजन में अगर पढ़ रहे हैं तो कुछ थियोरेटिकल डायमेंशन, उसका कुछ तो डाटा आपके पास होगा ना. तो ये तो टीचर का काम है ना. हाँ, हाँ, दोनों तरफ से. कंसेप्ट पहले तो पॉवर्टी होगा. ठीक है. अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव वाला डायमेंशन हमको नहीं देखना है, हमको सोशियोलॉजिकल वर्क वाला पॉवर्टी देखना है ना. इज पॉवर्टी फंक्शनल? कैसे नहीं हो सकता है. कैसे बताओ? It helps to get the work done, most of the works done, which could otherwise have costed you more. नहीं, poverty psychological भी है. When you give arms to someone, all right, you have the psychological confidence, arrogance that you are not like them. So poverty could be functional, है. Poverty could be exploitative, है. Poverty could be a design of life. ऑस्कर लेविस की तरफ चलेंगे, ऐसा वेबर भी आ जाएगा. ये सब सारे डायमेंशन में पहले समझेंगे, फिर पुअर लिविंग को समझेंगे. जैसे आप लोग बहुत बार जीएस में पढ़ते होंगे पॉवर्टी, तो क्या लिखते होंगे? बीसी सर्कल ऑफ पॉवर्टी. देख लो, उसमें लगाओ, थोड़ा बहुत लगेगा उसमें. तो सबसे पहले जो चीजें उठाए ना, उसको लेमैन की तरह समझ लीजिए. सोशियोलॉजी का हर कंसेप्ट ट्राई टू अप्रोच लाइक अ लेमैन, एंड देन यू ट्राई टू गो फॉर हाउ सोशियोलॉजिस्ट हैव परसीव्ड इट. होगा ना. अब जैसे हम लोग फैमिली हॉस्टल में रहते हैं, कोई भी फैमिली बोल देते हैं, वो तो हाउस होल्ड है. देखो तो सेकेंड पेपर पार्ट बी यूनिट 5,
हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली इन इंडिया लिखा है, एम शाह का कंसेप्ट है। हाँ, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है। एवरी फैमिली कुड बी हाउस होल्ड बट एवरी हाउस होल्ड कैन नॉट बी अ फैमिली है। इसका मतलब कि फैमिली होने के लिए कुछ चीज चाहिए, प्रीरिक्विजिट होंगे, ये सब सोशियोलॉजी है, होगा ना, ये सब डालना है। इसीलिए थोड़ा सा वो सब जो लिखा रहता है, ही इज अ ब्रदर फ्रॉम अनदर फादर, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, है, वो सब किसी पे नहीं चलेगा, वो बोलने में ठीक चलता है, ये सब नहीं चलेगा। किनशिप का मतलब हो गया दो तरह के रिलेशन, रिलेशंस बॉर्न आउट ऑफ ब्लड इसको कंसेंग्यूइन बोलते हैं, एंड रिलेशंस बॉर्न आउट ऑफ ए फाइनल मैरिज। It is a set of arrangement of relations born out of blood and born out of marriage. ठीक है ना। अब तुम अपने से क्वेश्चन पूछोगे, सर जिस बच्चे को गोद ले लिए वो है, जब किनशिप केवल कंसेंग्यूइनल फाइनल ही हो सकता है, तो गोद लिया हुआ बच्चा तो फाइनल हो नहीं सकता है, मैरिज वाला नहीं हो सकता, वो तो मैरिज से आया ना, तो मैरिज तो किए नहीं ना, वो तो अडॉप्ट किए तुम, तो adopted child or adopted son or daughter is considered consanguineal relation. जैसे my relation with my wife, she is a primary a final relative, my son is a primary consanguineal relative of mine, son के साथ blood relation है, wife के साथ marriage relation है। अब मैंने यूज किया प्राइमरी, इसका मतलब सेकेंडरी भी होंगे, टर्शियरी भी होंगे। एक छोटे छोटे चीज को जान लोगे ना तो यूनिट को समझना आसान हो जाता है, रटना नहीं है, देयर इज नथिंग टू मगअप, मगअप करके नहीं चलेगा भाई, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू डियर। गोपाल तो चाय पिला दे भाई, अभी बताते हैं, थोड़ा 2-4 दिन लगेगा, अभी 4 दिन बात करेंगे। कौन बच्चा पूछ रहा है? यस से हम बात कर लेंगे। उसको बुलाए थे हम यहाँ पे। ये कौन है अभी जो लड़की? ये हाँ, ये अपनी तेजस्वी है। अच्छा, नहीं हुआ, कोई नहीं, फिर दोगे ना, फिर देना है ना, एक बार कुछ आंसर सब अपना लिख के लाओ, है ना। और जैसे मैंने वो सारे नोट्स को जो मेरे हैं उसको एक रीडिंग पहले देखनी हाँ, पड़ेगी, दे लो, तो ऐसे कुछ टाइम लेके वो रीडिंग लेके फिर आंसर्स लिखना। एक बार यूनिट 1 कर लो ना, 2-3 दिन लगेगा, उसमें से 1-2 आंसर का स्ट्रक्चर ही बना के लेते हो मेरे पास, विल सिट डाउन एंड विल लेट यू नो, डोंट वरी, ये आपके पास है कि दोबारा से क्लास जरूरत नहीं है, जरूरत है। नहीं, मतलब मुझे ऐसा अच्छा, विल सिट डाउन विद इन 2 or 3 days एंड विल फाइंड आउट। अगर हम लोग लगता है कि बहुत ज्यादा गड़बड़ है, देन विल थिंक, अदरवाइज नो। जैसे मैंने अभी इस बात को बेसिकली फॉर्म कर दिया था, हाँ। तो वो भी हाँ, दे। मेरी बात हो गई। ठीक है, दो ना, एग्जाम देते रहना चाहिए बेटा, एग्जाम देते रहना चाहिए, दैट मेक्स यू मोर अलर्ट। तो उसके लिए पर्टिकुलर कुछ अलग से करूँ या फिर से क्योंकि मैंने बिहार का कुछ स्पेशल आता है, पढ़ लो। जो वहाँ के कंटेंट हाँ, ये सब तो कुछ मैगजीन वैगजीन मिलता है ना, बिहार स्पेशल, वो सब ले लो, तो ज्यादा समय लेते चले जाओ। स्ट्रक्चर वगैरह का अभी तो थोड़ा सा एक बार राजेश आ जाता है तो क्लास को शुरू होने में 4-5 दिन लगेगा अभी। 4-5 days हाँ, तो राजेश सर आ जाए,
ठीक है, तो दोस्त लोग नहीं आया। पता नहीं, फिर मुझसे बात की, वो बोले कि हम इम्पोर्टेंट देना 28 में, तो हम बात में लेते हैं। हाँ ठीक है, तो अटेम्प्ट मेरा 28 में ही है, तो सर पहले करना ठीक होगा या फिर? हाँ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। मैंने बोला ना, बेसिक डायमेंशन ऑफ द सिलेबस तो नहीं बदलता है ना, हाँ, वो समझ गया। वो नहीं बदलेगा। तेरा नंबर है नहीं लोगे पास? तो नहीं, नंबर ले लो बेटे। नहीं, निखिल नहीं और वो चीज़ है। 2-3 दिन में इसमें फोन करते हैं सबको। अच्छा, ठीक, जल्दी आना है क्लास में? नहीं, कल आना। ठीक है बेटे। अच्छा, लीजिए बंद कीजिए। सर मैं ये कोर्स लेना